الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم، میں آپ کی میزبان کنزہ الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن ایمان رمضان. جیسے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھی کچھ معاملات ڈسکس کر سکیں. ایسے معاملات، ایسی پرابلمز، ایسے معاشرتی پہلو جن کو آپ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ ایسے چہرے جنہیں آپ اسکرین پہ دیکھنا چاہتے ہیں، جن سے گفتگو کر کے ہم آپ کو کچھ اویئرنیس فراہم کر سکیں. کچھ ایسے ادارے، کچھ ایسے لوگ جن سے گفتگو کر کے ہم آپ کو کوئی پازیٹیو میسج کنوے کر سکیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں، جو کہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، جہاں ہر مسلمان کی یہ کوشش ہے کہ میں اپنی رب کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو فالو کروں اور اس پہ چلتے ہوئے اپنے آخرت کو آسان بناؤں، اپنے لوگوں کو، آس پاس کے لوگوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کچھ پازیٹیو چیزیں کنوے کر سکوں. ہمارا فرض بنتا ہے بینگ اے مسلم کہ ہم رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنے رب تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اپنی رب تعالیٰ سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے ہوئے اپنے پیاروں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، بلکہ اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کے لیے کچھ پازیٹیو کر سکیں، کچھ اچھا کر سکیں، ان کی ہیلپ کر سکیں، ان کے کام آ سکیں. نہ صرف رمضان میں بلکہ اس کے علاوہ بھی باقی جو مہینے ہیں اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پازیٹیو امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں اور وہ کردار ادا کریں کہ جو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ادا کرنا چاہیے. ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں تاکہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہم سے تنگ نہ پڑیں، ہم سے پریشان نہ ہو، ہم سے تکلیف میں نہ آئیں. تو یہ بھی ہماری پرائرٹی ہے. ہمارے ساتھ یہاں کچھ گیسٹ ہیں، میں ان کا تعارف کراؤں گی، لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں ملک صاحب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں اظہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں افطاری ٹرانسمیشن ایمان رمضان. روزہ نام صرف اس بات کا نہیں ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں، بلکہ روزے کا مقصد ہے نظروں کا جھک جانا، روزے کا مقصد ہے دل کا نرم ہو جانا، روزے کا مقصد ہے اپنے نفس کو توڑ دینا. جب ہم اپنے آنکھوں کو روزے کی حالت میں دیکھیں گے، جب ہم اپنی سوچ کو روزے کی حالت میں رکھیں گے، تو ہمارے تمام ارد گرد کے افراد جو ہیں وہ بھی ہم سے روحانیت کا حاصل کریں گے، کیونکہ اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ یہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے. تو اس میں تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو پھر ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں. جب انسان اپنے نفس کو توڑتا ہے تو اس کے اندر کی میں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جیسے ہی وہ میں ختم ہوتی ہے تو ایک احساس بیدار ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے صرف بھوک اور افلاس ہی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کا خیال رکھنا بھی ہے، دوسروں کے کام آنا بھی ہے، دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات کو مزید بہتر کرنا بھی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ ایک جسم کے مانند تھے. اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے حصے جو ہیں وہ آرام میں نہیں رہتے. تو بالکل اسی طرح جیسے ہم مسلمان ہیں تو اگر کوئی دوسرا مسلمان بھائی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، اس کا احساس ہمیں کرنا ہے، اس کی زندگی کے ہر پہلو کو ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں اڑوس پڑوس کا خیال رکھنا ہے. اور بالکل اسی طرح جیسے ہم رمضان کا مہینہ گزاریں گے، یہ ایک ہمارے لیے پریکٹس کا مہینہ ہے، ٹریننگ سیشن ہے، اور باقی 11 مہینے بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح چلیں گے. اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور مہمانوں کا تعارف کروائیں گی کنزہ الطاف. جی بالکل، ہمارے ساتھ آج کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم معاشرے کے مختلف سیکٹر سے یہاں لوگوں کو جمع کر سکیں تاکہ ہم ہر ڈومین پہ گفتگو کر سکیں، ہر چیز کو آپ لوگوں کے سامنے لا سکیں. تو ہمارے یہاں دائیں جانب موجود ہیں
रीमा मेमन साहिबा जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन की। अस्सलाम वालेकुम। उन्हीं के साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद नज़ीर साहब जो कि फाउंडर और चेयरमैन हैं, जो कि फाउंडर और चेयरमैन हैं ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम गुफ्तगू को करते हैं इस हवाले से कि ताकि लोगों तक हम पॉजिटिव मैसेजेस कन्वे कर सकें और लोगों के सामने वो चीज़ें भी ला सकें जिनको लोग जानना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ रीमा मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि बीइंग अ जनरल सेक्रेटरी जो आप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिएगा कि बेसिकली आप लोग किस थीम पे काम कर रहे हैं, आप लोगों का पर्पस क्या है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी काम सिर्फ ज़ात, नस्ल और रंग रूप पे नहीं करता। हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी की कोशिश है कि हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े या पाकिस्तान में मौजूद जितने भी ऐसे लोग किसी भी ख्वाह मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों या किसी भी मसलक या किसी भी रंग व रूप और ज़ात पात का हिस्सा हों, हमारे लिए वो सिर्फ़ इंसान है और इंसानियत की खिदमत रब ताला के करीब कर देती है। हमारा दीन, हमारा माशरा और हमारा इस्लाम हर तरीके से हमें सिखाया जाता है कि इस्लाम कहता ही है कि इंसानियत की खिदमत कर लो। तो हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी जो हमारा नेम है वो भी इंसानियत की खिदमत करना ही इसका तर्ज बनता है। हम लोगों की कोशिश है कि हम जैसे कि आपने पूछा कि हम किस तर्ज पे काम करना चाह रहे हैं। सबसे पहला बेसिक हमारा पूरी टीम का एक सोच कह सकते हैं जिसे कि हम लोग स्किल पावर पे काम करते हैं। अच्छा, आज भी आप देख लें कराची में कई एक ऐसे इलाके हैं, सिंध में, पंजाब में कई एक ऐसे इलाके हैं जहाँ 10-10, 15-15 साल के बच्चे जिन्हें स्कूल के बारे में पता ही नहीं है, जिनकी एजुकेशन ग्रोथ स्टार्ट ही नहीं हुई। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छी नहीं हुई, स्टार्ट ही नहीं हुई। तो हम बेसिकली उस पर काम कर रहे हैं। कराची में और सिंध में हमारे कई एक स्कूल सेंटर्स, अकेडमीज चल रही हैं। अच्छा, मॉर्निंग में वहाँ पे एकेडमी पे स्कूल की रनिंग होती है, बच्चे पढ़ते हैं, उनको तरबियत क्लासेस दी जाती हैं। ज़ोहर के बाद हम लोगों ने वहीं बच्चों के लिए जो कभी स्कूल नहीं गए और अब उनकी एज ऐसी है कि 10-15 साल के बच्चे को आप नर्सरी में नहीं बिठा सकते। बिल्कुल ऐसे ही, जाहिर सी बात है। फिर उन बच्चों के दिमाग को कंट्रोल करके वैसे चलाना इट्स नॉट ईजी। तो हमने क्या किया है, हमने उनको स्किल्स दे दी हैं। बच्चियां हैं तो वो सिलाई सेंटर का सीख रही हैं, हमारे पास ब्यूटिशियन कोर्सेज कर रही हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग, बिल्कुल वोकेशनल है। अच्छा, हम लोगों को सिर्फ सिखा के छोड़ नहीं देना है, हम उनको कारोबार भी मुहैया कर रहे हैं। हमारे अंदर ना एक थोड़ा सा मैं ये कहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स में बदलाव होना चाहिए। सबसे पहले पेरेंट्स अपने अंदर एक चीज़ पिक करें। 100% का रेशो है हमारे पास कराची में। 5% बिजनेसमैन है और 95% जॉब होल्डर्स हैं। बिल्कुल ऐसे। हम अपने बच्चे को सिर्फ ये चीज़ सिखा रहे होते हैं, शायद आप लोग भी मेरी बात से मुत्तफिक हों कि बेटा पढ़ लिख लो, अच्छी जॉब मिल जाएगी। हम एग्जैक्टली हम ये नहीं करते कि बेटा पढ़ लो, सीख लो, समझ लो और कारोबार। अगर हमें पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं आज हमारा शिकवा होता है पाकिस्तान बहुत पीछे, बहुत माजरत के साथ सिर्फ हम लोगों की वजह से। बिल्कुल, हर मुल्क का रहने वाला, एग्जैक्टली हर मुल्क जो है वो एक ड्रामेस्टिक वर्ल्ड है। हर किसी ने अपना किरदार अदा करना है। तो किरदार ऐसा तो नहीं अदा करना है कि आप सुबह उठे, आपने रूटीन फॉलो किया, रात को आप सो गए। अल्लाह ताला ने भी हमसे पूछना है कि दुनिया में, इतनी खूबसूरत दुनिया में जब तुम्हें जगह दी गई, माहौल दिया गया, पढ़ाई दी गई, माँ बाप तरबियत के लिए मिले, तुमने क्या किया? बिल्कुल। अभी तो मेरे मुंह पर, आपके मुंह पर हम लोगों को ना लोग अच्छा भी बोल देंगे, क्रिटिसाइज भी कर देंगे। मज़ा तब है जब आप किसी की ज़िंदगी बना के जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप किसी को खाना खिला रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको ये सिखा दें कि खाना तुमने कमा के खाना कैसे है, तो ये उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत पॉजिटिव बात की है, नो डाउट कि हमें इसी स्किल्स पे काम करना है। बेसिकली स्किल्स जो हैं वो इंसान को ग्रूम करती हैं, वो आपको बेटरमेंट की तरफ लेके जाती हैं, वो आपके लिए रास्ते खोल देती हैं। जबकि आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ डिग्री लेके घूम रहे हैं, तो कभी कभी इतना पढ़ा लिखा इंसान भी परेशान होता है कि उसको कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिलती है। तो ये बहुत मसले मसाइल होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर देखें तो पढ़े लिखे हमारे पास बहुत होंगे, स्किल्स वाले लोग कम होंगे। हुनरमंदी जो है वो एक बेहतरीन सिलसिला है रोज़गार का। आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी जगह पे मौजूद हैं, आपके लिए अल्लाह पाक वहीं रोज़गार फराहम कर देगा। लेकिन हमें ट्रेनिंग सेशन बच्चों में ऐसा दिया जाता है, जैसे अभी मैडम ने फरमाया कि
पढ़ो लिखो और अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो हमारा माइंड सेट शुरू से ऐसा अगर बना दिया जाता कि नहीं भाई आपको अपना काम करना है बल्कि दूसरों को रोज़गार मुहैया करना है, तो जब ये माइंड सेट बन जाता है तो यही तो फिर ये माइंड सेट एक पूरी फील्ड बनता है और फिर रोज़गार देने वाले ज़्यादा और लेने वाले कम हो जाते हैं। मगर यहाँ सिलसिला थोड़ा उल्टा है, उसको सीधा करने के लिए हम हाजी साहब की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसी के चेयरमैन भी हैं और फाउंडर भी हैं हाजी नज़ीर साहब। सर, आपने बेसिकली क्या बुनियादी क्वेश्चन क्या था, क्या सोच डेवलप हुई कि आप ह्यूमैनिटी की तरफ आ गए? कोशिश तो ये कि बहुत सारे लोगों को देखा, इसमें हम अपने जिनको लीडर मानते हैं, कायद मानते हैं, वो दिमाग में सवाल उठते हैं ना जब इंसान सोचने बैठता है, खल्के खुदा की राह से कांटे हटा के देख, तो ये सारे मामले चलते हैं। इनाम जब ही मिलेगा ना जब लोगों के लिए आप अच्छा सोचेंगे। बिल्कुल ऐसा। तो हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी बातें जो मैडम ने की हैं, तो हमारा यही मंशूर है, यही हमारे इरादे हैं। इंशाल्लाह ताला आगे चल के बहुत अच्छा करने का इरादा है। अभी फ़िलहाल जितनी हमारी 10 साल में कोशिश थी हमने की अपने तौर पे। अब बाहर निकले हैं, लोगों से ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ मिल के काम करें। इस मकसद को लेके आगे चलें कि हमारे मुल्क में एक भी बेरोज़गार ना रहे। बहुत अच्छी बात है। नौकरी पे तो 10 लोग जाएंगे, यही जो मैडम ने फरमाया कि हम 5% की तरफ जाते हैं, जाने की कोशिश नहीं करते हैं। 95% जो है ना उनकी जाने की कोशिश करते हैं। अरे नहीं भाई, 5 को 6 पे ले आओ, क्योंकि कारोबारी आपको 5% लोग मिलेंगे दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे। यहाँ और उसके बाद options 95 लोग जो है ना वो जॉब की तलाश में होते हैं, मारे फिर लेते हैं डिग्रियाँ लेके। तो उनको हम स्किल देंगे इंशाल्लाह ताला उस तरीके से जो मैडम ने कहा, तो बहुत अच्छा तरीका होगा और बहुत अच्छा रोज़गार मिलेगा। रोज़गार इस तरह से हम देते हैं कि किसी के घर में कोई छोटी मोटी दुकान करा दी, किसी को मतलब ये कि कोई सामान डलवा दिया, अगर किसी की कोई पंचर की दुकान है तो उसको मशीनें वगैरह लेके दे दी। जी जी। किसी के कोई छोटा सा केबिन है पान का, तो अगर सामान की किल्लत है या कोई ऐसे मामलात हैं या वो सामान ले नहीं सकता है, जी। उसको दिला दिया। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं और अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफीक दे। हम और भी गुफ्तगू आपसे करेंगे, लेकिन यहाँ मुझे कहा जा रहा है वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद आते हैं और फिर सर से इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। क्या खबर, क्या सज़ा मुझको मिलती, क्या खबर, क्या सज़ा मुझको मिलती, मेरे आका इज़्ज़त बचा ली, परदेसिया मेरी मुझसे लेकर, परदेसिया मेरी मुझसे लेकर, काली कमली में अपनी छुपा ली। वो अता पे अता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले। वो अता टलने वाले, जैसी ड्योढ़ी है वैसे सवाली, जैसा दाता है वैसे सवाली। मैं मदीने से क्या आ गया हूँ, जिंदगी जैसे बुझ सी गई है। मैं मदीने से क्या आ गया
बुझ सी गई है, घर के अंदर फजा सोनी सोनी, घर के बाहर समा खाली खाली। मैं गदा हूँ मगर किसके दर का, वो जो सुल्तान कोनो मका है। मैं गदा हूँ मगर किसके दर का, वो जो सुल्तान कोनो मका है। कि ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है, ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है। मेरे सर पर है ताजे बिलाली, क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली। परदेसियाँ मेरी मुझसे लेकर, काली कमली में अपनी छुपा ली। सुभान अल्लाह। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं रीमा की तरफ आऊँगी क्योंकि जैसे कि हम इनकी एनजीओ के हवाले से बात कर रहे थे, तो रीमा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये आपको कितना टाइम हो गया इस एनजीओ को रन करते हुए? अच्छा, ये 2016 से रजिस्टर्ड है। अच्छा। तब तक अपनी मदद आपके तहत मेरे वालिद, हाजी साहब, ये सब फ्रेंड्स हैं, तो ये लोग मिलके कर रहे थे। अच्छा अच्छा। अच्छा, मेरी इन्वॉल्वमेंट जो हुई है वो लास्ट 2 इयर्स में हुई है, जब से मेरे वालिद थोड़े बीमार रहने लगे, तो उनकी जगह पर मैं वो जगह तो नहीं ले सकती, वैसी बात है। वो जो बिल्कुल, हर ये लोग बंदा सब मिलकर सीनियर्स जितना अच्छा काम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमें तो सीखने में बहुत एक वक्त चाहिए होता है। फिर जब मैं इन लोगों के साथ ज्वाइन हुई तो मैंने थोड़ा सा क्राइटेरिया को चेंज किया कि मेरा कॉन्सेप्ट अगर पर्सनली मैंने इन लोगों के आगे रखा तो इन लोगों को भी अच्छा लगा कि मैं राशन नहीं बांटूंगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं राशन बांट के उस शख्स को, उस फैमिली को मफलूज नहीं करना चाहती। HOH उनको बिजनेस, उनको कारोबार छोटा फराम कर देगा। 10,000 का आपको राशन देना है, आप 20,000 की उस बच्ची के हाथ में सिलाई मशीन थमा दो, उसको सिखा दो, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन बहुत कोर्सेज कर positive दें। बात है। मतलब मछली और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, बिल्कुल, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ ऑन स्क्रीन के इस तरह की एनजीओज के लिए आप लोग भी हेल्प करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोगों को पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी क्योंकि हाजी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी हैं, कि आप लोगों ने जब जाहिर है वर्किंग की, इट्स नॉट अ इजी टास्क ना, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। लोगों को आपने जाहिर सी बात है मोटिवेट भी करना होता है, ग्रूम भी करना होता है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो आपको क्या लगा, मतलब एनजीओ में आप लोगों को लोगों ने सपोर्ट की? अच्छा, लोगों की सपोर्ट की अल्हम्दुलिल्लाह। जब अभी लोगों को दिख रहा है कि हम काम भी कर रहे हैं, पहले तो हम दिखाते ही नहीं थे, हमारी अपनी कोशिश ये थी कि ना दिखे, लेकिन अब हमारा जो माशरा है वो सोशल मीडिया की हद तक इतना ज़्यादा पाबंद हो गया है कि लोगों को दिखेगा तो कुछ काम होगा। और अब हमारे पास खुद को हमें ज़रूरत है डोनेशंस की, कि हम लोग आएँ, हमारे साथ जुड़े और अपने हाथ से काम करें। हमें पेमेंट नहीं चाहिए, हम आपको वो लोग जो वाकई ज़रूरतमंद हैं, आपकी और हमारी तरह एक अच्छी ज़िंदगी जीने के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके घर में 2 टाइम भी भरपेट खाना पके और उनके बच्चे किसी काबिल हो जाएं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी, अपने माँ बाप, अपने बच्चों को बेहतर तौर पे ज़िंदगी फराहम करें। बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ ये भी पूछना चाहूँगी, अगर कोई देख रहा है या कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपसे कहाँ अप्रोच? बिल्कुल, आप हमारे सोशल मीडिया के #HOH NGO से सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे ओपन हो जाते हैं। ठीक है। सेम एड्रेस हमारा वेबसाइट का भी है, हम लोग आपको अकाउंट नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे। खुद मैं चाहूँगी खुद आएँ, मुझसे मिलें, हम लोगों के साथ बैठें, जो काम हम कर रहे हैं हमारे साथ शाना बशाना हो। देखिए, मदद करना सिर्फ पैसा दे के जान छुड़ाना नहीं है, या पैसा दे के किसी की मदद करना नहीं है। मदद आपकी वो भी होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी लाखों हों तो हम हज़ारों दे देंगे। आप अपनी ज़िंदगी, अपने एक हफ्ते का ना 1 दिन का खाना दे दें, यानी 300 रुपये का। आपका तो वो 300 रुपये में पर टाइम का खाना है, लंच हो गया या डिनर हो गया।
لیکن کسی ضرورت مند فیملی کے وہ 2 لوگوں کا کھانا ہے. بالکل ایسا ہی یہ بہت اور اچھی آپ یہی کی بات سلسلہ ہے. یہ لے کے چل رہے ہیں. بہت اچھی سوشل بات میڈیا ہے. پہ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے دسترخوان کا سلسلہ بھی شروع کیا. الحمدللہ. مختلف جگہوں پہ دسترخوان لگ رہے ہیں HOH کے. تو حاجی صاحب میں آپ کی طرف پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اسکلز سے آپ جو عام خلقت خدمت ہے اس کی طرف تشریف لے آئے کہ آپ نے دسترخوان لگانا شروع کر دیا. یہ اچھی بات ہے, بہت سی جگہوں پہ ہے, آپ نے بھی کنٹریبیوشن دیا, آپ کی ٹیم بھی وہاں نظر آتی ہے. تو لوگ کتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں دسترخوان کے حوالے سے؟ آپ نے دسترخوان کا پوچھا خاص طور پہ. ہم کسی درجے میں بھی, کسی مقام پہ بھی, کسی جگہ پہ بھی ہم کرتے ہیں نا, انسان کی بات کرتے ہیں یا انسان کا ذکر آتا ہے نا, تو رب العزت نے انسان کو ہی اعلیٰ بنایا سب سے. ہم انسان کے لیے اچھا سوچتے ہیں, اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اللہ پاک ہمیں بھلائی کی طرف لے کے جاتے ہیں. انسان کو جب اللہ پاک نے ارادہ کیا نا خالی دنیا میں بھیجنے کا, تو دنیا میں بھیجا ہے تو یہ نہیں کیا کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ دنیا میں. اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. کس لیے؟ اس لیے انسان کی بھلائی کے لیے, بالکل. کہ انسان کی بھلائی ہو جائے, انسان کامیاب ہو جائے. تو جب یہ اللہ پاک اتنی فکر کر رہے ہیں, اللہ پاک نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا, تو ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں, بالکل بہت اچھی ہم بات ہے. ایک دوسرے کی بھلائی کا سوچیں جی اور اچھا کریں. جب ہم اچھا کریں گے نا, ہم پتہ ہے کیا بہت ساری باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم کسی کو کچھ کر کے نا ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار میرے لیے دعا کر دے بھائی تو. جی ارے اللہ کے ولی, دعا تو وہ ہوتی جو اس کے دل سے نکلے گی, بالکل. زبان سے بہت کیا اچھی دعا بات آپ نے لیں گے. کہی. یہ بہت اچھی بات. بہت اچھی بات کہی آپ. دعا تو وہ ہوگی نا, جیسے ہمارے وکیل صاحب کا, جکرانی صاحب کا ذکر آیا, انہوں نے فرمایا کہ میں فری میں سب خدمات دینے کے لیے تیار ہوں. جی, جی, تو دعا وہ قیمتی ہوگی جی جی جی, جو وہ بہت دعا اچھی نکلے بات آپ نے تو کی اس ہے. غریب کے دل سے جب دعا نکلی ہوگی, اصل دعا وہ ہوگی. وہ اثر کریں رکھتی یا نہ ہے. کریں, لیکن اس وقت جی, جب جی, غریب جی. کے دل سے نکلی ہوگی وہ ان کی بالکل سب نہیں. سے اچھی حاجی صاحب نے بہت اچھی بات کی, اور میں ان کا بہت شکریہ بھی ادا کروں گی, اور اپنے سب مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی, انہوں نے اتنا وقت دیا ہمیں. اور آپ لوگ جو پازیٹیو کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید کامیابی دے. یہاں وقت ہوا ہے ہیڈ لائن بریک کا, تو ہم ملتے ہیں بریک کے بعد.